Kushi, welcome or welcome back to my YouTube channel. To someone who don't know me, which you obviously won't because I'm not famous yet, but I will be someday, you guys. So hi, I am so happy. I mean, I really like doing this long form kind of content, but I have a time constraint. भाई मुझे time ही नहीं मिल रहा है, and I'm so happy to say this that I'm not a final year MBBS student anymore. I'm graduating in literally 1 week, one freaking week. I'm graduating. 6 years it has been, and it is ending. It is done, and it breaks my heart. I mean, I have plethora of content. If you are on Instagram, bhai, do follow me on Instagram. I have a whole series ongoing, which is last 100 days of my MBBS abroad life, which I'm also posting on YouTube. अगर तुम नहीं देख रहे हो तो क्या कर रहे हो? जाओ देखो भाई. Like I have documented the whole 100 days, like last 100 days. I think on Instagram I am on day 50. YouTube I think I'm on day 40 or something. मैं बीच में 10 दिन गायब हो गई थी. But yeah, I mean, I have documented the whole thing, and if you're not watching it, what are you even doing, baby girl? So go check that out. And today we are back with another video. I honestly received a lot of your questions. A lot of you were inquiring about the whole MBBS abroad thingy. एंड अ लॉट ऑफ यू टेक्सटेड मी सेइंग कि दीदी समझ ही नहीं आ रहा यार, क्या करें, बहुत ही क्वेश्चन मार्क लग रहा है. एंड आई गेट इट, आई लिटरली गेट इट. बट भाई मेरा 1 महीने से एग्जाम्स चल रहे हैं, लाइक लिटरली दिस होल जुलाई मंथ एग्जाम. मेरी अभी भी ऑस्की और स्टेट एग्जाम बाकी है. स्टेट एग्जाम मेरी 19 को है, ऑस्की मेरी 23 को है, एंड ऑन 28th इज व्हेन आई एम ग्रेजुएटिंग. On 4th of August, I'm going back, flying back to India. I have already booked my one-way flight ticket. It's already breaking my heart. And I have also made video about that, so you can go check that out if you are interested. So yeah, I was telling कि I love when you guys text me, but नहीं यार, possible ही नहीं हो पा रहा है. Literally मेरी exams चल रही है, and I've been so busy lately कि मैं बिल्कुल मतलब it is an everyday task. Even this whole documentation things on Reel, it's everyday, you know, editing. It's everyday uploading, scripting. It is a whole lot of things. एंड मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था यूट्यूब के लिए, बट हियर आई एम बिकॉज यू गाइज वॉन्टेड अ वीडियो एंड आई एम हियर, लाइक यू नो, कम ऑन. हे, सो बहुत ज़्यादा कैचअप सेशन हो गया. यू नो, एवरी टाइम यू गाइज टेक्स्ट मी saying कि दीदी हमने वीडियो देखी, we have came from YouTube. Like मैं as much as I love my Instagram की audience, which is not really more, I love my YouTube की audience because YouTube I started back in 2019, and मेरा पूरा जो जब मैंने content creation start किया था, it was a YouTube thing. Like I love long form content, but it takes a lot of time to edit, और वो time नहीं है मेरे पास अभी. Oh guys, oh damn, FMG की एग्जाम 26 को है, एंड इसके बाद वाली जो एग्जाम है वो मेरी, और मेरी ऑलरेडी फटी पड़ी है. लाइक मेरे को वाटर लग रहा है कि क्या होने वाला है. तो मे बी लाइक आई विल पोस्ट लाइक फ्यू वीडियोज एंड देन मैं गायब हो जाऊंगी, एंड देन FMG एग्जाम के बाद आई कम बैक टू यूट्यूब कि हे हेलो व्हाट्सअप. आई थिंक नाउ बाय नाउ वी ऑलरेडी नो दैट आई एम वेरी इनकंसिस्टेंट विद दैट, बट आई एम वेरी कंसिस्टेंट ऑन Instagram, so you should also follow me on Instagram and check the content out there. Reels are still easier than editing a 10-minute long video. So I was saying मैं भटक जाती हूँ थोड़ा, a little ADHD. So yeah, I was saying I love you guys, like love you, thank you for being there, thank you for supporting, I love you. But I know how heartbreaking it is for you, for all of you, you know, जो ऐसे क्वेश्चन मार्क में बैठे कि भाई मतलब क्या करना है अब, क्योंकि नहीं पता ना, कोई गाइडेंस के लिए नहीं है, कोई कुछ बता ही नहीं रहा है. एंड आई गेट इट, आई लिटरली गेट इट, बिकॉज आई वॉज देयर, आई वॉज दैट पर्सन, एंड somehow that time does not feel very big. Like बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिख रहा है मेरे दिमाग में, तो आई फील लाइक इट्स yesterday, बट somehow it was 6 years ago. मैं अपना ग्रेजुएशन का प्लीज़ चालू नहीं करती हूँ बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट होल स्टोरी. मुझे तो बहुत कुछ फील हो रहा है, और पूरी इंस्टाग्राम पे मैंने चीख के बता दिया कि मुझे कितना कुछ ज़्यादा फील हो रहा है. सो विल स्टिक टू द पॉइंट इन दिस वीडियो एंड विल टॉक अबाउट you guys. So I get you because I was there and I have been through that tunnel, and I'm right now on the opposite side of the tunnel. So more than anybody, like anybody around you who you can ask and they would give you direction, I'm a better person, most qualified, certified, few days on paper also, kuch dinon mein, but I'm the most right person to tell you what to do, what not to do, because I'm literally on the other side of the tunnel and they're on that side of the tunnel with you. So I'll tell you what to do. Also, like, you know, is MBBS abroad worth it? Because I get a lot of that question. और मैंने already उसके बारे में वीडियो बना दी है, but people still have a lot of question कि हाय हमको आना चाहिए, because इंडिया का और बाहर का बहुत डिफरेंट है, विच आई अग्री. तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ओके, एंड दिस वीडियो विल बी डिस्कसिंग, इज MBBS abroad
in 2025 is it still relevant, is it still worthy? Because अगर worthy नहीं है तो क्यों लोग भेड़ चाल की तरह बहुत लोग आए जा रहे हैं, है ना? I get it, I get your point. This video is sponsored by Select Your University. They are basically helping students with whole admission process, which is a very tedious process. They just ease it up for the students and their parents, and they take all your burden on their shoulder so that you can sleep in peace. Why to trust them? Because they are literally doing it for 14 plus years, and they have launched a very mind-blowing offer that is going on right now. So if you register through the link which is there in the description below, you can get a free flight ticket to Georgia. Yes, you can get the first flight ticket free to Georgia. It is a first come first serve preference, so make sure you go, you register yourself through that link. And cherry on top, they're also not taking any consultancy fees. Yes, there is a zero consultancy fees, so make sure you go check their channel out, make sure you register yourself and get a free flight ticket to Georgia. The whole question of it being worthy is literally very subjective. मतलब किसी के लिए कुछ चीज़ worthy है, किसी के लिए कुछ चीज़ worthy नहीं है. It literally depend कि तुम्हारे किस तरह के experience रहे हैं in general और तुमने उससे क्या सीखा है. क्योंकि अगर literally तुम 6 साल आके बस अपने बेड पे बैठ के नेटफ्लिक्सिंग किए हो और तुमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी सीखा नहीं, और लोगों को जिन्होंने जो भी सिखाने की कोशिश की उनको सिर्फ तुमने गालियां ही दी हैं, तो इट इज अ शिट एक्सपीरियंस. एंड ये चीज चाहे तुम चाहो तो इंडिया में भी कर सकते हो, एंड इट इज स्टिल द वेरी शिटी एक्सपीरियंस टू एंड वेरी शिटी लाइफ टू लिव. भाई माई ओपिनियंस आर माई ओपिनियंस एंड यू कैन हेट मी फॉर दैट, बट या आई मीन इफ यू आर नॉट लर्निंग एंड तुम फर्नीचर की तरह बस पड़े हुए हो, तो तुम्हारे क्या एक्सपीरियंस, मतलब यू एंड फर्नीचर इज लिटरली इक्विवेलेंट. फर्नीचर के क्या एक्सपीरियंसेस है, सिमिलरली तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस है अगर तुमने कुछ किया ही नहीं है. बट एट द सेम टाइम, whatever that has happened with you, which will happen with you, without a question कि तुम इंडिया में रहो, तुम जॉर्जिया में रहो, तुम किर्गिस्तान में रहो, तुम कजाकिस्तान में रहो, तुम यूनिवर्स के कोई भी कोने में रहो, या तुम सोलार सिस्टम में कहीं भी रहो, तुम अर्थ छोड़ के चले जाओ, तुम जहां भी जाओगे देयर आर सम सॉर्ट ऑफ अप्स एंड डाउन्स दैट यू वुड फेस, राइट. ये वीडियो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होने वाला है, तो देयर इज नो स्ट्रक्चर, देयर इज नथिंग. मेरे को जो लग रहा है मैं आज बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा मन था और मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. आज मैंने टाइम निकाल के लाइक आज तो बना रही हूँ चाहे कुछ भी हो जाए. सो या व्हाट आई वाज सेइंग कि नो मैटर वेयर यू आर, वेर एवर यू विल बी, you will face some sort of issues. You might be either 18, 19, 20. If you're underage, you might be 17. ये 17 से 20 वाला तुम्हारा एज ग्रुप है जब तुम अपने घर से बाहर जाओगे, जब तुम कॉलेज अपना चालू करोगे. तो तुम चाहे इंडिया छोड़ के कहीं बाहर चले जाओ, या तुम इंडिया में ही पढ़ो, अपनी सिटी छोड़ के जाओ, या अगर सिटी में पढ़ रहे हो तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट people goes, because it is very different and I have not lived that life, so I cannot tell what it is like. Okay, but I'm just telling कि तुम अपना घर छोड़ के एक जगह जा रहे हो, एंड that जगह could be anywhere, ठीक है, एंड वहां जाके कुछ चीजें, कुछ एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ हो रही हैं, ठीक है. और यार भाई मैं पहले ही बता दूं, इंडिया हो, जॉर्जिया हो, कोई भी जगह ले लो, कोई भाई 24 घंटे, जैसे इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते थे ना नीट की प्रिपरेशन के टाइम में, लाइक मतलब 15 17 20 घंटे तुम पढ़ रहे हो. कोई नहीं पढ़ रहा है कॉलेज में, वैसे इंडिया में भी नहीं पढ़ रहे हैं, इंडिया के बाहर भी नहीं पढ़ रहे हैं. सब लोग एग्जाम के एक हफ्ते, एक महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले ही सब पढ़ना चालू करें. कॉलेज इज नॉट अबाउट जस्ट स्टडीइंग, इवन इफ इट्स मेडिकल कॉलेज, it's just not about studying. It's about a lot of things other than studying. It's about you exploring your passions, you exploring what you want to do in your life, you exploring just yourself, what you like to do as a person, you exploring in making yourself as a person, sitting with yourself, being okay with being alone also sometimes, being okay with being lonely also sometimes. That is what college life is. College life is basically you making and building yourself, teaching yourself what kind of things you want in your life. There's a lot of things that we carry from our parents which we feel like are not really aligning with our life, so you unlearn that and you learn a whole new thing. So कहीं ना कहीं तुम अपने आप को चीजें सिखा रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, and you go through a lot of shit. Dude, I'm not even kidding. College, oh my god, it's a shitty place sometimes. It is scary, it is shitty, you hate it, you want to run back to your home because it's a comfort place. But where MBBS abroad, yeah, in general abroad comes in picture, is you can't, there is no escape, there is no going back, running back to anywhere, because it is, one, it is very costly, second, you even can't tell it to your parents sometimes what shit you're going through, right? And in that moment you sit with yourself and you question yourself, you cry about it, you journal it, or whatever ways that you feel कि भाई तुम
उससे उभर सकते हो, यू डू इट, यू एंड देन यू गेन द कॉन्फिडेंस एंड वहां पे तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रहा है. तो अगर तुम ऐसा जीवन जी रहे हो, ठीक है, लिटरली ये वाला जो मैंने तुम्हें बताया, वे यू आर लिटरली वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड यू आर सीइंग थिंग्स, वहां पे इफ यू आस्क मी इज एमबीबीएस अब्रॉड वर्थ इट, 100% yes. I have lived it and I love every part of it. भाई मुझे, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं कल अपना फ्लाइट टिकट बुक कर रही थी एंड आई नो इट इज द लास्ट फ्लाइट टिकट दैट आई एम बुकिंग, दैट इज नो मोर कमिंग बैक, एंड आई हैव क्राइड, आई हैव लिटरली क्राइड. एंड आई थिंक 1 महीने से जब से मुझे पता चला है कि भाई मेरी एग्जाम्स कब है और जो भी है, मैं तब से रो ही रही हूँ. लाइक एवरी अदर डे जस्ट हिट्स मी कि भाई आई एम लीविंग दिस अपार्टमेंट. मतलब एक पराए शहर में एक मकान को घर बनाया मैंने, वो घर बनाने की एबिलिटी मुझ में है, मुझे वो रियलाइज हुआ ना क्योंकि मैं यहाँ पे थी, वरना मेरे को कैसे ही पता चलता. सो आई मीन इफ दैट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग, जहाँ पे यू आर नॉट लिटरली, ओ माई गॉड, हाँ, कि जहाँ पे यू आर नॉट लिटरली ब्लेमिंग पीपल फॉर वॉट एवर दे डिड टू यू, बट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू, यू नो, not take it very seriously. But I get it, when you are into something it just hits you, breaks you. बट वो भी तो देखो ना, तुम में वो विल पावर भी तो आ रहा है कि जहाँ तुम चीजें कर सकते हो. तो इफ यू आर लिविंग दैट वे भाई, इट इज तो वेरी वर्थ इट. इट इज अ वेरी वर्दी वे ऑफ लिविंग एंड इट इज अ एमबीबीएस अब्रॉड इन जनरल, इट वुड बी वेरी वर्थ इट. मेरे को पता है मैं आज 4 तारीख को जा रही हूँ एंड आई विल क्राई माई एस ऑफ. एज मच एज आई हेटेड दिस प्लेस, आई हेट दैट आई एम गोइंग. लाइक ट्रस्ट मी, आई फकिंग हेट इट. और मैंने वापस अपना ग्रेजुएशन का चालू कर दिया है. लाइक अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट. सो या, इफ यू आर लिविंग दैट वे वे यू आर actually having a character development and you are literally working on yourself and you are seeing what you like, what you don't like, what aligns with you, what does not align with you, and you make good friends, it is 110% worthy. but अगर तुम एक फर्नीचर की तरह पड़े हुए हो तो फिर तो तुम कहीं भी पड़े रहो. in general your life is very unworthy. and the whole question of MBBS abroad कि भाई it is worthy or not, see, अगर तुम इस mindset से आ रहे हो कि तुम इंडिया का और यहाँ बाहर का करिकुलम कंपेयर करोगे और फिर तुम उस पर शिट फील करोगे, तो यू वुड लीव योर होल लाइफ फीलिंग शिट अबाउट इट. देयर इज नो एस्केपिंग और देयर इज नो गोइंग बैक फ्रॉम दैट. ठीक है, बट you actually are very open. One thing I wish somebody has told me while I was coming abroad is be open to new experiences, be open to new curriculum, be open to new place, new cultural shocks, and in general a lot of things. Like be open, like do not have to come with that notion of comparison, because तुम compare कर रहे हो तो फिर तुम्हारा अच्छा खासा टाइम कंपैरिजन में जाएगा and it will take you a lot of time to, you know, accept the fact that what you have is also something which you should embrace. Are you getting my point? ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है बट समझो मैं क्या बताना चाह रही हूँ. ठीक है, प्लीज बी ओपन टू न्यू थिंग्स. बिकॉज मेरे को याद है, मेरे को 3-4 साल लगे, मुझे किसी को ही नहीं था मेरे को गाइड करने के लिए. आई एम खुद फर्स्ट बॉर्न, देयर वाज नोबडी, आई नो देयर वाज नोबडी हु वाज डूइंग MBBS, or there was nobody who even went out studying. I was the first person in my whole lineage, right? So everything that I had faced, I had nobody to tell. And I think that was also a good part because मैंने खुद चीजें फिगर आउट की. एंड दैट्स व्हाई आई कैन कम हियर एंड टेल यू आल्सो. दैट्स व्हाई मैं इतनी चीख के बोलती हूँ कि भाई आई एम द राइट पर्सन, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन इट. एंड दैट्स व्हाई आई हैव दैट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस आल्सो, बिकॉज आई वर्कड ऑन माई सेल्फ. एंड व्हाई आई कुड डू इट, बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम. गिविंग MBBS अब्रॉड, इट इज 6 years का कोर्स ना. इंडिया में तो 4.5 साल का तुम्हारा वो होता है और फिर 1 साल तुम्हारे पूरा इंटर्नशिप में जाता है. यहाँ तो 6 साल है, तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिलता है. उस टाइम को तुम कैसे यूटिलाइज कर रहे हो तो तुम्हारे हाथों में है ना. अभी अगर तुम नहीं कर रहे हो और तुम पी के फूक के उसको बस बर्बाद ही कर दोगे और तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो उसमें तो किसी की गलती नहीं है. तो इट इज लिटरली ऑन यू. Are you making it worthy for your own self? Are you that self-aware? Are you willing to literally do something for yourself? So ये बहुत ही एक सेल्फ मोटिवेशन वाला स्पीच हो गया है, बट प्लीज गेट माई पॉइंट. ओके, एंड आई टेल यू वन मोर थिंग. इन पास्ट फ्यू मंथ्स आई हैव मेड वीडियो अबाउट ईस्ट यूरोपियन यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी. सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट DTMU. So DTMU is one of the top colleges of Georgia. I'm not even kidding. Like it is a private college but it is one of the top college. पूरे जॉर्जिया में सबसे अच्छी पढ़ाई अगर किसी की है ना तो वो DTMU की है. बट सबसे ज्यादा फीस अगर किसी की है तो वो भी DTMU की है. मतलब इट इज एक्सपेंसिव, इट इज शिट एक्सपेंसिव. यूनिवर्सिटी एक्सपेंसिव है, जगह बिकॉज इट्स Tbilisi, इवन Tbilisi is very expensive. बट
इट इज टॉप नॉच और वन ऑफ द स्ट्रिक्ट कॉलेजेस इन जॉर्जिया. लाइक वहां जाके तुम्हें उतना टाइम नहीं मिलता है. आई डोंट नो एक्चुअली, मतलब मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव फ्रेंड्स फ्रॉम दैट, बट जितना मैंने सुना है वहां से मुझे इतना पता है कि वहां तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलता, बिकॉज इट इज अ टफ कॉम्पिटिशन. लाइक लिटरली इट इज टफ कॉम्पिटिशन. इट इज ग्रेट कॉलेज. दे प्रिपेयर यू फॉर द यूएसएमएलई होल थिंग. और यूएसएमएलई हो जाएगा तो एफएमजी तो हो ही जाएगा, बिकॉज एफएमजी इज स्टिल ईजियर देन यूएसएमएलई. एंड बाय द टाइम you guys will be giving exam, it is next exam. So yeah, still next will be easier than USMLE, I think so. बाकी तो मुझे पता नहीं, वो जब आएगा तब उनको पता चलेगा. So BDTMU is basically situated in Tbilisi, and it has hostels for girls and boys separately. It has cafeterias and all the library and amenities that person needs. Like सारी basic चीजें वहाँ पे है. Please यार, मेरे को लग रहा है अगर तुम्हें basic एक यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है, because यार हर यूनिवर्सिटी में वो सारी बेसिक चीजें होती है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या अलग बता दूँ उसमें. तो वो सब में होता है. तो अगर इफ यू रियली वांट टू प्रिसाइजली वॉच फॉर इट, आई थिंक सम पीपल फ्रॉम डीटीएमयू में भी कंटेंट क्रिएटर्स होंगे जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे से ज्यादा बेटर बताया होगा. तो यू कैन चेक दैट आउट. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन हेल्प यू, गाइड यू, ओके. एंड आई थिंक आई एम बेस्ट विद दैट, बिकॉज मैं एक यूनिवर्सिटी बेच नहीं सकती तुमको, बट मैं ये बता सकती हूँ कि ये यूनिवर्सिटी बेस्ट है, ये यूनिवर्सिटी बेटर है, ये यूनिवर्सिटी उससे खराब है, या अगर तुम्हारे बजट में कौन सी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए सेट होगी और तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली कौन सी यूनिवर्सिटी है. तो आई कैन डू दैट विथ यू, बट आई कैन नॉट सेल योर यूनिवर्सिटी because I'm not a sales person. I'm a content creator. I love creating. I love connecting. That is something my job is. Not even job is. That is something what I like, what I love, and that is what I have explored in last 6 years. कि भाई ये करने में मजा आ रहा है, ठीक है. तो DTMU is that कि मैंने बता दिया DTMU के बारे में क्या है. Oh my God, wait, let me check how much is DTMU's fees. So DTMU की $6,000 per year है. फीस जो है वो बढ़ चुकी है. पहले आई थिंक इट वॉज 5,500, but now it is $6,000 per year. They provide you with hostel, mess में तुमको इंडियन खाना मिल जाएगा. अरे भाई मेरे को तो लगता है अब तो इट इज सो इजी. यू गो टू तिब्लिसी, देयर आर so many Indian restaurants. मतलब मुझे लग रहा है, and you get things for cheaper price also. So there are so many Indian restaurants, you get things for cheaper price also. तो मुझे लगता ही नहीं तुम्हें इंडिया की याद आएगी, because you get every fucking thing there, like every fucking thing, literally. उसके अलावा आई थिंक आई हैव स्पोक अ लॉट. आई रियली लाइक connecting with you guys. So if you have any query, you can give your inquiries there, because यार possible नहीं हो रहा है कि मैं हर एक इंसान को personally मैं guide कर सकूँ. But still, if you have any questions, you can reach me out on my Instagram page. I am active there and I would help you out with as many things as possible. Yeah, I hope this video was helpful. I hope I said things the way it was there in my hair, and I hope you guys liked it. If you did, make sure you like, you comment, you subscribe, you share with your friends who are in the same boat as you. I'll see you in my next video. Till then, wishing you can eat 50,000 calories a day and not get a pound. Peace. Bye.